چلتے پھرتے اذکار کرنے کا حکم۔ ہم صبح و شام کے اذکار مصروفیت کی وجہ سے بیٹھ کر نہیں کر پاتے، بچوں کا کھانا وغیرہ بنانا ہوتا ہے تو چلتے پھرتے ذکر کرتے رہتے ہیں، تعداد مقرر نہیں کر پاتے، تو کیا اس طرح ذکر کر سکتے ہیں؟ اور کون سے اذکار کی پابندی کرنی چاہیے؟ مسز عصمت پشاور سے۔ بالکل جائز ہے، قرآن تو کیا کہتا ہے، یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہمارے نیک بندے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی، تو سب طرح سے ذکر کرنا جائز ہے، تو آپ جیسے چاہیں ذکر کریں۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ کچھ ٹائم توجہ کے ساتھ بھی ذکر کرنا چاہیے، جیسے صبح صبح آپ کو بچوں کو تیار کرنا ہے، ناشتہ بنانا ہے، تو ٹھیک ہے اس دوران کر لیں، لیکن جب بچے اسکول چلے گئے، آپ فارغ ہو گئی ہیں، تو آپ تمیز سے مصلی پہ بیٹھیں اور کچھ اللہ اللہ کر لیں توجہ کے ساتھ، ترجمہ مفہوم سوچ کے، تو اس کا دل پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے، اس میں بہت زیادہ ثواب ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا تو ٹھیک ہے، چلتے پھرتے بھی ٹھیک ہے۔ باقی کون سے ذکر کرنے چاہیے، تو حدیث میں بہت سارے اذکار ہیں، عام طور پہ میں 2 اذکار بتاتا ہوں جن کی حدیث میں بہت تائید ہے۔ ایک تو ہے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، حدیث میں آتا ہے احب ما طلعت علیہ الشمس، زمین پر جو سورج طلوع ہوتا ہے نا، جتنی چیزوں پہ ہوتا ہے ان تمام چیزوں سے زیادہ اللہ کو یہ کلمات محبوب ہیں، احب الی اللہ، اللہ کو زیادہ محبوب ہیں یہ کلمات، تو 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، یہ تیسرا کلمہ اس کو کہا جاتا ہے، اس کا ورد کر لینا چاہیے۔ یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، حدیث میں آتا ہے جس نے 100 دفعہ یہ کلمات پڑھے تو اسے بنی اسماعیل کے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور اس سے زیادہ کوئی شخص نیکیاں کما ہی نہیں سکتا اس دن، ہاں وہ کما سکتا ہے جو اس سے بھی زیادہ مرتبہ پڑھ لے ان کلمات کو، تو یہ بھی بہت زیادہ فضیلت والے کلمات ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی آپ منتخب کر لیں جس سے آپ کو مناسبت ہو۔ اور ایک تسبیح استغفار کی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ ترجمہ مفہوم سوچ کے کہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں یا پناہ مانگتی ہوں، اور میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں یا کرتی ہوں ان تمام گناہوں سے جو میں نے کیے، تو یہ بھی۔ اور ایک تسبیح درود شریف کی پڑھنی چاہیے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، یا یہ کہ مختصر کر لیں صلی اللہم وبارک وسلم علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، یہ مختصر درود ہے، یہ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام پڑھ لیں۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا تو 10 دفعہ درود اور استغفار پڑھ لیں 10 دفعہ، اور 100 دفعہ صبح شام کی تسبیحات پڑھ لیں۔ رہا یہ کہ گننا مشکل ہوتا ہے، تو آج کل ایک تسبیح آ رہی ہے، وہ ابھی میرے جیب میں رکھی ہوتی، گاڑی میں شاید جیب میں پڑی ہوئی بھی ہو، تو وہ میں تسبیح اکثر اپنے ساتھ رکھتا ہوں، وہ اس میں بہت آسانی سے تسبیح ہو جاتی ہے، گاڑی میں تو ساتھ ہی رکھتا ہوں میں، تو اس میں کیا ہے کہ وہ جو ہے نا دانے کی طرح بھی ہے اور دھاگا بھی نہیں ہے اس میں لمبا، یہ جو لمبی دانے والی تسبیح اس کو سنبھالنا آج کل مشکل ہوتا ہے، ذرا سا آپ نے غفلت کی تو وہ دانے دائیں بائیں ہو گئے۔ اور ایک آتی ہے بٹن والی، یعنی سیدھے ہاتھ سے آپ بٹن دبا رہے ہوتے ہیں، وہ اس میں کمفرٹ نہیں ہوتا، آدمی زیادہ انگلی میں زیادہ فٹ نہیں ہوتی۔ ایک اور تسبیح آئی ہے آج کل، وہ تسبیح ہوتی ہے کہ وہ ہوتی بھی چھوٹی ہے اور اس میں دانے ہوتے ہیں، ایسے کر کے نا اس کو آپ گھماتے رہیں اور نمبر بھی نیچے سیو ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس میں یاد رہتا ہے کتنی دفعہ پڑھی ہے، اور وہ دائیں بائیں بھی ہوتے نہیں ہیں دانے اس کے، وہ دیکھ لیں آپ، مل جائے گی آپ کو۔ کہا تھا کہ دیر آر 3 ٹائپس آف، ابھی تک تو 2 ٹائپس چل رہی تھی نا، 3 ہو گئی ہیں۔ ایک تو وہ مسلمان ہیں جن کو سرے سے آخرت کی فکر ہے ہی نہیں، لیکن چونکہ ہیں مسلمان، آخرت پر ایمان ہے، تو جمعہ پڑھنے آ جاتے ہیں، عید میں بھی نہا دھو لیتے ہیں، بقرعید میں بھی قربانی یا تو کر لیتے ہیں یا گوشت کھا لیتے ہیں۔ ایک وہ مسلمان ہیں جو مکمل گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ تیسرے وہ مسلمان ہیں جو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان سے پھر بھی گناہ ہو جاتے ہیں۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اللہ نے ایسے مسلمانوں کا بھی ذکر کیا قرآن کہ کچھ ایسے ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، انہوں نے اچھائیوں کو نیکیوں کے ساتھ ملایا ہوا ہے، لیکن ان کو فکر ہے کہ یہ چھوڑنے ہیں، کیونکہ ان کا اصل ہدف کیا ہے؟ آخرت۔ سوال پیدا ہوتا ہے جب ان کا اصل ہدف آخرت ہے، منزل ان کی آخرت ہے، تو پھر ان سے گناہ ہوتا کیوں ہے؟ گناہ بعض دفعہ اس لیے بھی ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی عادت سے مجبور ہو چکے ہوتے ہیں، ہتھیار ڈال دیتا ہے انسان۔ دیکھو ایک بیمار آدمی چاہتا ہے نا کہ میری صحت اچھی ہو، صحت پر تو ہر ایک کا ایمان ہے نا، لیکن عادت پڑ گئی ہے چرس پینے کی، اس کو پتا ہے کہ نقصان ہے، ہیروئن پینے کی عادت پڑ گئی، وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے ساتھ میرے دوست جتنے بیٹھتے تھے ہیروئن پی پی کے سارے اس دنیا سے بولو چلے گئے، تو اب اگلا نمبر اس کو پتا ہوتا ہے میرا ہے، لیکن پھر بھی پی رہا ہے۔ کیوں پیتا ہے؟ اس لیے کہ جب نشہ چڑھتا ہے تو اس کے لیے اپنے آپ کو برداشت کرنا، روکنا بہت مشکل، اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا اس میں، اتنی قوت برداشت نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کے جو گناہگار ہیں یہ صرف چرسی اور ہیروئنچیوں میں نہیں ملیں گے آپ کو، یہ ان لوگوں میں بھی ملیں گے جو
मादी नशा नहीं करते, क्योंकि नशा सिर्फ चर्स और हीरोइन का नहीं होता, बहुत सारी चीजों की आदत पड़ जाती है। ये जो जहेज की लानत है ना, नशा ही तो है। कल्चर को नशा हो गया इसका। कल्चर ने मिनहाइतुल कल्चर ये सुट्टा लगाना, जहेज का सुट्टा लगाना शुरू कर दिया है। लिहाजा अब कहीं शादी में जहेज ना हो तो पूरे खानदान को ऐसा लग रहा होता है जैसे किसी चर्सी को चर्स नहीं मिली, हीरोइनची को हीरोइन नहीं मिली, तो पूरे खानदान को ऐसा अजीब सा फील हो रहा होता है कि यार ये क्या हो रहा है, किस किस्म की शादी हो रही है। ये भी नशा है, चढ़ गया दिमाग पे। और भी बहुत से नशा है। आपने जो कसम ना तोड़ने की कसम उठाई हुई है, वो भी एक नशा है ना। नहीं जाऊंगा, बस अब इशारों में बात चलेगी। खवातीन बयान सुनती हैं, वो सारा मजमा भाग गया हमारा। यहाँ आती थी 2-4 रह गई हैं, बस 2-4 खवातीन रह गई, बाकी सारी भाग गई। तो मिनहाइसुल कौम भी कुछ आदतें पुख्ता हो जाती हैं, वो फिर कौम की बॉडी की रिक्वायरमेंट बन जाती हैं। यानी कौम मिनहाइसुल कौम ये चाह रही होती है बस ये तो होना चाहिए। बास कबाइली इलाकों में ये दस्तूर है कि जरा सा बेगम पे शक हुआ, ठा गोली से उसको उड़ा दिया। साहब मुझे बता रहे थे किसी कबीले का वाकया, किसी खातून को किसी आदमी के साथ देखा, जान से मार दिया। मैंने कहा ये तो सही नहीं है, सबूत किया है कि इसने बदकारी की नहीं की। तो वो कहने लगे भाई हमारी रस्म है, हमारे ऐसा होता है। अब वो रस्म छुड़वा नहीं सकता कोई भी उनसे, कौमी रस्म बन चुकी है। यानी अब आप छुड़वाने की कोशिश करो, आप दुनिया छोड़ दोगे, रस्म नहीं छूटेगी इल्ला माशाअल्लाह। तो ऐसे ही बॉडी को भी कुछ चीजों की आदत पड़ जाती है। फौज फिल्में देखने की आदत पड़ जाती है नौजवानों को, और अपनी ख्वाहिशात को हराम तरीके से पूरे करने की आदत पड़ जाती है। गालियां देने की आदत पड़ जाती है, बात बात पे जबान पे क्या आ रही है, गाली आ रही है। गुटखों की आदत पड़ जाती है, पता है नुकसानदेह है। देखो जो इस्लाम आपको दिन में दर्जनों दफा मिसवाक करने का हुक्म दे रहा हो, वो गुटखा आपके मुंह में बर्दाश्त करेगा जो वो मजहब? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह उठते ही मिसवाक, हर नमाज में मिसवाक, इतना दांतों को साफ रख रहे हैं। तो चलो आप मिसवाक नहीं करते, इस्लाम के हुक्म को छोड़ दिया, या ब्रश नहीं करते, दांत साफ नहीं करते, इस्लाम के हुक्म को छोड़ दिया। हुक्म के ऑपोजिट तो ना चलो ना। आपने तो हुक्म छोड़ा भी कि दांत साफ नहीं कर रहे, ऊपर से गंदा करने का पूरा इंतजाम। और गंदा भी ऐसा नहीं कि चलो कोई रोटियों या गोश्त फंसा हुआ है, गंद गुटके के मरीजों के आप मुंह देखा करो अपनी जिम्मेदारी पे। ऐसा ना आप कहें कि मुझसे आपने मशवरा दिया तो हम देख रहे हैं, कैसा गंद माजरत के साथ कोई गुटके की मरीज बैठे हुए भाई, माजरत जी नहीं। वो कहेंगे हम अपने खिलाफ थोड़ी सुनने के लिए आए हैं, एहतियातन। तो किस कदर गंद भरा हुआ होता है मुंह के अंदर। तो ये इस्लाम बर्दाश्त करेगा इस गंदगी को जो आपको बार बार अस्सुआकु वत्ताअतुरु मिन सुननिल अंबिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिसवाक यानी दांतों को साफ रखना और खुशबू का इस्तेमाल ये पैगंबरों की सुन्नत है। सारे पैगंबरों में ये चीज कॉमन थी। आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने पैगंबर आए हैं सबके दांत चमकते थे, हर वक्त साफ रहते थे, और सबकी जिस्म से खुशबू आती थी। गुटके वाला इस पैगंबरों की इन सुन्नतों के बिल्कुल अपोजिट चलता है कि नहीं चलता? बिल्कुल उल्टा चल रहा है। लेकिन आप बोलो नहीं छूटेगा भाई, आदत पड़ गई है, नमाज छोड़ने की आदत पड़ गई है। हमारे एक दोस्त थे, हम जहां रहा करते थे ना, तो नमाज पढ़ने के लिए हम जब मस्जिद में आते तो हमारे एक दोस्त थे, उनकी हमेशा फजर में एक रकत निकलती थी, हमेशा। हम उनसे कहते थे यार चलो कभी हो गया, रोजाना ही आपकी एक रकत निकली हुई होती है। उन्होंने कहा क्या करूं यार, मैं बस जब भी पहुंचता हूं ये होता है वो होता है, वो ये हो जाता है वो हो जाता है, और कुछ ना कुछ हो ही जाता है। हमने कहा चलो नमाज जब 5 मिनट आगे होगी तो आपको मजीद 5 मिनट का टाइम मिल जाएगा, मजीद 5 मिनट का टाइम मिल जाएगा। तो चलो अभी गर्मियों में नमाज जरा जल्दी हो रही है तो रात को देर से सोते होगे, सुबह उठते उठते कोई मसला होता होगा। तावील करता है ना इंसान, दूसरे के बारे में तो अच्छी तावील ही करनी चाहिए ना। अपने बारे में इंसान बदगुमान हो, दूसरे के बारे में अच्छा गुमान रखता। तो हम अच्छा गुमान रखते थे, मुझसे कहते थे कोई बात नहीं, अब नमाज जब 5, 10, 15 मिनट आगे होगी तो अब आपको टाइम ज्यादा मिल जाएगा। 5 मिनट भी आगे हो गई तो एक रकत तो मिल जाएगी ना मजीद। लेकिन हम देखते थे नमाज 5 मिनट आगे, वो भी 5 मिनट आगे, उसी हिसाब से नमाज 20 मिनट आगे तो वो भी 20 मिनट आगे। और मेरा ख्याल है 15 साल मैंने उनको इसी हालत में देखा है, हमेशा एक रकत उनकी निकल रही है। ये भी नशा है, चर्स और हीरोइन की तरह, टाइम पे ना पहुंचने का नशा। चलो गनीमत है पढ़ रहे थे, ये भी बड़ी बात है। लेकिन मैं उनसे कहता था जब जो नहीं पढ़ रहा उस पर तो इतराज नहीं होता, इसलिए कि वो तो सुस्त है एक नंबर का ना, काहिल है, उसे तो पढ़नी नहीं है। लेकिन आपने कुर्बानी तो दे दी ना, नींद कुर्बान हो गई, वुजू कर लिया, मस्जिद की तरफ आ गए, सर्दी गर्मी का ख्याल नहीं किया। तो जब ये इतनी टेंशन लेनी है ही तो यार 5 मिनट पहले आ जाओ। लेकिन लत पड़ जाती है इंसान को, हकीकत बता रहा हूं मैं। आपने देखा होगा मस्जिदों में सफ़े अव्वल के नमाजी वो सफ़े अव्वल ही के होते हैं, वो हमेशा आते हैं पहले। दूसरी सफ के नमाजी पूरे साल दूसरी, तीसरी के नमाजी पूरे साल तीसरी में होते हैं, ये होता है। तो ज्यादातर जो गुनाह होते हैं या जो बुराइयां मुआशरे में फैली हुई हैं, उन लोगों की जो आखिरत पर ईमान भी रखते हैं, आखिरत को बनाना भी चाहते हैं, उनके ज्यादातर मसाइल ये हैं कि उनको किसी न किसी बुराई की लत पड़ चुकी होती है, आदत पड़ चुकी होती है, और वो उसको छोड़ने में सीरियस नहीं होते, और वो बस एक गुजर करते हैं यार हमें क्या हो गई है, आदत हो गई है, हमसे नहीं छूटती। जिसको जमात छोड़ने की आदत हो जाए वो जमात से नहीं पढ़ता, जिसको नमाजें कज़ा करने की आदत हो जाए उसके लिए नमाज पढ़ना वबाले जान है। कह रहे कैसे पढ़े, उठे कैसे। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब की खानका में एक साहब आए, पहले तो लोग बुजुर्गों के पास जाके अपनी इस्लाह करवाते थे, उनसे फजर में उठा नहीं जाता था, और थे भी डॉक्टर
डॉक्टर, हजरत को खत लिखा कि मुझसे नहीं उठा जाता, मेरी नींद बहुत गहरी है, कुछ भी हो जाए मैं नहीं उठ सकता फजर में। तो आ गए खानका में, हजरत ने फरमाया ठीक है सो जाएं आप, सुबह देखते हैं। नहीं उठे सुबह, 4 आदमियों के जिम्मे लगाया इनको उठाओ, लेकिन वो ऐसी नींद, भाई नहीं उठा, भाई नहीं उठ सकता, मैं नहीं उठ सकता भाई, बहुत सख्त नींद आ रही। तो 2-4 दफा हजरत ने ट्राई किया, देखा कि ये तमीज से समझ में इनके बात नहीं आ रही। तो हजरत के जिन्नात की ठुकाई वाले वाकयात भी उन्होंने पढ़े हुए थे। एक जिन किसी तालिब इल्म पे आ गया था, तो वो तालिब इल्म बहुत सारी जगहों पर गया, यानी उसके घर वाले लेकर गए, वो जिन उतर के नहीं दे रहा था ना, और जिन का कहना यह था मैं बांग्लादेश से आया हूँ, इसको बांग्लादेश लेके जाऊंगा मैं। तो हमारे हजरत के यहाँ वो आया, तो हजरत गए उसकी खैरियत मालूम करने के लिए, तो उस वक्त वो जिन उसके ऊपर आया हुआ था। अब जिन जब आया हुआ था तो उसने कहा कि हजरत पे हमला करने लगा वो। तो जिन्नात से जो डरता है ना वो गया काम से, ये ज़हन में रखो। हजरत ने आगे बढ़ के ना, वो हवा में उछल रहा था कमबख्त, असल में तो तालिब इल्म था लेकिन उसमें जिन चढ़ा हुआ था ना, तो वो हवा में उछल रहा है। तो हजरत का हाथ भी माशाल्लाह लंबा, लुधियाना के पंजाब से ताल्लुक था हजरत का। होते हैं ना पंजाब के बड़े बड़े माशाल्लाह जमींदार होते हैं, बड़ी बड़ी पगड़ियां होती हैं, तो हजरत की हाइट भी अच्छी थी, तो हाथ भी लंबा। तो जैसे ही वो उछल के करीब आया, हजरत ने एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया उसको, इतनी जोर से मारा कि वो बेहोश होके गिर गया। काफी देर बाद उसे होश आया, उसने कहा हम जा रहे हैं। उसने कहा हम जा रहे हैं, और वो हजरत का तमाचा जिन्नात में मशहूर हो गया था। उसके बाद बहुत दफा ऐसा हुआ, किसी पे जिन हुआ, जिन आया, ये वाकया हजरत की किताब में भी लिखा हुआ है, ये हमने तो बराह रास्त सुना है। कई बार ऐसा हुआ कि किसी पे जिन आया, उसने हजरत को फोन किया, तो हजरत ने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ। हजरत जब पहुंचे तो बंदा बिल्कुल ठीक था। अहले खाना ने बताया कि जिन्नात ये कहकर गए हैं कि मुफ्ती रशीद अहमद साहब आ रहे हैं, हम जा रहे हैं। मुफ्ती साहब आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, रोब बिठाओ रोब। वाकया आई गया तो अपना भी एक सुना दो। किसी पे जिन आया हुआ था हमारे किसी रिलेटिव पे, मैं तो ये आमिलों को मानता नहीं हूँ और ना इनके पास किसी को लेके जाने का मशवरा देता हूँ। तो जिन पे आया हुआ था उनके तावीज गंडे तो निकलवा के हमने सारे फेंकवा दिए, हमने कहा कुछ भी नहीं वो, लेकिन वो सच्ची मुच्ची का जिन था, ठीक। तो मुझे धमकी दे रहा था कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अच्छा ये बात भी है तकरीबन 2009 या 10 की, उस वक्त मैं बहुत ही बारीक था। जिन लोगों ने मेरा 10 साल पुराना माजी देखा है ना, उनको पता है मैं तो 2013 के बाद थोड़ा सा जिस्म पे गोश्त आया है, वरना तो कहीं गिरते थे तो डायरेक्ट हड्डी शुरू हो जाती थी, डायरेक्ट हड्डी पे चोट आती थी। बहुत पतला नहीं, बारीक। तो इतना बारीक था मैं, और जिस पे जिन आया वो माशाल्लाह अच्छे खासे सेहतमंद थे। तो अब ऐसा ना हो मुझे जिन्नात उतारने के लिए कॉल करना शुरू कर दें, हमारे यहाँ भी आया हुआ है आप आ जाएं, तो मैं ये काम नहीं करता। ये जो मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ कि आप यही खुद ही कर लो, ठीक है। वो शायर है सलमान गिलानी, बड़ा अच्छा शेर है, शेर तो याद नहीं आ रहा, उसका मफहूम याद है। एक आदमी ने फोन किया कि तेरी बीवी पे जिन चढ़ गया है, किसी को कहा ना फोन करके कि तेरी बीवी पे जिन चढ़ गया, घर आ। वो कह रहा पंगा जिन ने खुद ही लिया है, खुद ही भुगतेगा, हमने थोड़ी कहा। तो मैं गया वहां पे, तो मुझे वो धमकियां दे रहा था, आवाज बदली हुई थी और धमकियां दे रहा था, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। अब मैं बहुत ही बारीक, मैंने ये अपनी आस्तीनें ऐसे करके चढ़ाई। हालांकि वैसे अगर आस्तीनें उस दिनों में चढ़ाता ना तो किसी को खौफ नहीं आता। वो कहता यार अभी तक तो मामला छुपा हुआ था, हम समझे शायद कोई मसल वसल बने हुए होंगे, तो मैंने ऐसे आस्तीनें चढ़ाई। मैंने कहा तेरी ऐसी की तैसी। 2-4 दफा ऐसे धमकियां दी हैं बस। फिर आयतल कुर्सी पढ़ के जब फूंक लगाता तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई बहुत जोर जोर से मार रहा है, जिनको ऐसे लगता था। तो भाग गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनमें ये कोई मेरा कमाल नहीं है, ये कॉन्फिडेंस का कमाल है। जिनको ज्यादा लिफ्ट बोलो नहीं कराया करें, और इनमें अक्सर केसेस फेक भी होते हैं। हमारे यहाँ नाजमाबाद में एक नौजवान पे जिन चढ़ गया था, उसने उधम मचाई हुई थी। उसके रिश्तेदार उसको लेकर आ गए हमारे उस्ताद के पास, इस पे जिन चढ़ गया कुछ करो। उन्होंने उसको तन्हाई में लेकर गए। अच्छा वो जिन अरबी बोल रहा है। अब ये हैरान हो रहे हैं कि ये तो रक्षा चलाने वाला आदमी है, लड़का है, अरबी कहाँ से आ गई? तो सऊदी अरब से जिन आया है। ये जिन आया कहाँ से? अरबी जिन है। तो इन्होंने दरवाजा बंद करके उसकी लगाई है तबीयत से कुट। बोला मुझे पता है तेरे पे जिन मिन नहीं है, तू सच सच बता दे मामला क्या है। जब तबीयत से कुट लग, थोड़ी बहुत कुट से नहीं होता, ये बड़े ड्रामेबाज होते हैं। तबीयत से लगी है ना कुट, तो उसने बोला अच्छा मारो नहीं, आपको बता रहा हूँ, मुझे किसी से इश्क हो गया है, मैं अपने ऊपर जिन का बहाना करके मैं कहता हूँ उसके घर लेके जाओ। जब उसके घर जाता हूँ तो मैं ठीक हो जाता हूँ। तो मुझे बार बार बहाने से महबूबा के घर लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कम्बख्त तू अरबी कैसे बोल रहे? कह रहे फजाइल अमाल की जो अरबी इबारतें हैं वो रट के याद की है मैंने। ठीक है, फजाइल अमाल से जो अरबी इबारतें हैं ना वो रट्टा लगा लगा के याद की हैं, और कुछ अरबी वरबी नहीं आती। हाँ, तो मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह का वो तमाशा मशहूर था। तो हजरत ने कुछ लोगों को इनके जिम्मे लगाया कि उठे। जब नहीं उठे ना वो, तो हजरत ने उनको बताया कि इनसे कहो कि मैं आ रहा हूँ और फिर मैं वही तमाचा लगाऊंगा जो उधर लगाया था। तो हजरत फरमाते हैं जैसे ही मैं गया ना एकदम तमीज से उठ के बैठे। अब वो कहाँ गई वो कि मुझसे उठा ही नहीं जाता, मैं हो ही नहीं सकता, मैं कैसे उठूंगा, मैं ये कैसे होऊंगा। तो या तो अपने ऊपर कोई तमाचा लगाने के
लिए बंदा रखो, वो उठाएगा आप। और अगर कोई तमाचा लगाने वाला नहीं है मेरे भाई, तो फिर अपने खुद ही तमाचे लगाया करो, सजा दिया करो अपने आप को। जिस दिन फजर की जमात निकल गई, नाश्ता गोल, नाश्ता नहीं करेंगे। हजरत हकीम अख्तर साहब रहिमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे कि जिस खुदा ने तुम्हें सुबह अपने सामने हाजिरी का हुक्म दिया, सारा दिन खिलाता है पिलाता है, सुबह कह रहे मेरे सामने आ जाओ, तो तुम्हारे मुंह से निवाला उतरता कैसे है जिस दिन फजर छोड़ देते हो? उसके पेड़े तो खा रहे हो जो वो दे रहे तुम्हें। सुबह का नाश्ता वो करे जो फजर की नमाज पढ़े। अल्लाह हमने तेरी इबादत की है, अब हम इसके लायक हैं कि तेरे रिज़्क़ से हम फायदा उठाएं। अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, नाश्ते के टाइम पे बैठा हुआ होगा और कैसे बैठ के ऑर्डर कर रहे होते हैं, देर हो रही है मुझे जल्दी लेकर आओ। तो ये अल्लाह के लिए भी तो ऑर्डर होना चाहिए, अल्लाह के लिए भी तो ये हुक्म होना चाहिए कि मुझे देर हो रही है, मुझे नमाज पढ़नी है, मुझे जाना है। तो जब तक मेरे भाई इंसान संजीदा ना हो और अपने आप को सजा ना दे, तो जिन गुनाहों की लत पड़ चुकी होती है वो गुनाह आराम से छूटते नहीं है, उनमें सीरियस होना पड़ता है, जिहाद करना पड़ता है, ऐसे नहीं हो जाता वो। अगर अल्लाह ना करे आपको फुहुश फिल्मों की आदत पड़ गई है, नौजवानों में ये मर्ज बहुत फैल रहा है, सजा दो अपने आप को, सजा। बोले ये काम अगर मैंने किया तो ये सस्ते में नहीं होगा, इसकी पेनल्टी लगेगी, सजा दूंगा अपने आप को, मैं सस्ते में नहीं छोड़ दूंगा। अगर नमाज छूट गई, सजा दो अपने आप को। गाली जबान से निकल गई, सजा दो अपने आप को। जब सजाएं दोगे तो ये इसकी अलामत होगी वाकई आप आखिरत को चाहने में मुखलिस हो, वरना जबानी दावे जबानी बातें अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। तो वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात। इसी में सब्र भी है, बेसब्री की भी आदत पड़ती है, में सब्र करना पड़ता है। हमारे हजरत के एक मुरीद थे, उनको गुस्सा बहुत आता था, फिर गुस्सा जारी करते रहते थे, वो सब्र नहीं था उनमें। हजरत को खत लिखा कि मैं अपनी इस्लाह चाहता हूं, मैं गुस्से में पागल हो जाता हूं। हजरत ने फरमाया जिस दिन गुस्सा जारी करो ना, उनकी तनख्वाह के हिसाब से हजरत ने फरमाया कि इतने पैसे सदका करो। गुस्सा आया, जारी कर दिया, बाद में निदामत हुई कि यार नहीं होना, ज्यादा हो गई, तो क्या करना है? फरमाया 500 रुपए सदका कर दो। ये थप्पड़ है जो अपने ऊपर लगाया जा रहा है। तो शुरू में तो ऐसा हुआ कि बार बार जब सदका करना शुरू किया तो फिर आदत पड़ना, फिर गुस्से पे कंट्रोल करने की आदत शुरू। एक साहब ने हजरत को खत लिखा, मुझे अपनी बीवी पे बहुत गुस्सा आता है बिला वजह, और उसको मैं हद से ज्यादा फिर डांटता हूँ। हजरत ने फरमाया कि जब हद से ज्यादा आप गुस्सा करें ना, तो आपकी सजा ये कि बाद में बीवी से माफी मांगे। अब जिस आदमी को बीवी पे गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा हो, वो तो तकब्बुर की वजह से आता है ना, ये मातहत है तो रोब झाड़ रहे, उसके लिए माफी मांगना आसान काम बोलो नहीं है, क्योंकि माफी मांग के आप तो अपने आप को गोया नीचे कर देते हो, रुस्वा कर देते हो। माफी मांगना आसान थोड़ी है। तो उसने मुझे बताया कि यार ये काम मेरे ऊपर इतना शाक गुजरता है कि अगर मैंने बीवी पे गुस्सा किया तो बाद में मुझको माफी मांगनी पड़ेगी। ये इतनी टेंशन वाला काम था मेरे लिए कि मैंने कहा गुस्सा ना करो, ये आसान है, गुस्सा करके बाद में माफी मांगना ये बहुत मुश्किल काम है। तो कुछ तो करे, कुछ आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा मेरे भाई। मैंने कहा था ना वो डायरी वारी लेके बैठे, तो हो सकता है अब डायरी मिल गई हो आपको घर में। एक हफ्ता तो मैंने कहा था तलाश करने में लगेगा कि अपनी खामियां लिखें उस डायरी में बैठ के। भाई बोला था ना, अरे क्या हो गया, भूल भुलैया इतवार के बयान में बोला था कि डायरी लेके बैठे, उसमें हमारे जो उस्ताद है ना जिनसे मैंने पढ़ा है, 92 में उनका मैंने पहला बयान सुना था। वो बयान ही यही था कि अगर आप आखिरत चाहते हो ना तो एक डायरी लेके उसमें अपनी खामियां लिख दो। सबसे पहले आपको पता तो चले मेरे अंदर ये बुराई है। हाँ वो तजवीज आई है कि अपनी खामियां खुद ना लिखें, बेगम से कहें कि मेरी खामियां तुम लिखो और तुम्हारी खामियां मैं लिखूंगा। असल में वो तो ठीक है, दूसरा आपकी खामियां ज्यादा अच्छा बता सकता है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि जंग छिड़ जाएगी। हकीकत है, वो जब कहेगी ये खामी हो गया है ही नहीं है, तो तुम्हारा फिर ये कहेगा तुम्हारे अंदर ये खामी। तो सबसे बड़ी खामी यही है कि अपनी खामी मानना ही नहीं है। तो पहले इसकी तो इस्लाह हो ना, फिर उसके बाद अगला स्टेप है। तो डायरी में बैठ के अपनी खामियां लिखें। मैं गुस्से को बिला वजह जारी करता हूँ, बात बात पे खामखा में मेरा मीटर शार्ट होता रहता है, ये गुटखा खाता हूँ, ये सिगरेट पीता हूँ, नमाज में पाबंदी नहीं हो रही, तकबीर औला की पाबंदी नहीं हो रही, ये मसला है, बच्चों की तरबियत की कोई फिक्र नहीं है, घर में टाइम नहीं दे रहा, सारा दिन कटर के ढक्कन पे बाहर बैठा रहता हूँ गली में, ठीक है ना। एक एक चीज बैठ के लिखें, लिख के ना दिमाग इंसान का इस काबिल नहीं होता कि सारा चीज खोपड़ी में रखे, वो अपने उसको पेपर पे लेकर आए, ठीक है ना। फिर पेपर संभाल के रखें, ऐसा ना हो कि वो पर्चा ही घूम जाए तो आपकी सारी खामियां मार्केट से शार्ट हो गई। तो किसी डायरी में लिखें, फिर उसको फिर बैठे कि यार ये छोड़नी कैसे है, इसके लिए क्या तरतीब है। चलो आदत पड़ गई है, मुश्किल हो रहा है, लेकिन हर चीज का कोई हल तो होता है ना। मा अंज़लल्लाहु मिन दाइन इल्ला अंज़ल लहु शिफान, बुखारी की हदीस है। नबी ने फरमाया कोई बीमारी अल्लाह ने ऐसी पैदा नहीं की जिसका इलाज ना किया हो। इसमें जिस्मानी बीमारियां भी है, रूहानी बीमारियां भी हैं। हर बुरी खसलत का इलाज अल्लाह ने इस दुनिया में रखा है, हर बुराई छूट सकती है। ओ भाई सहाबा कराम शराब के सदियों से आदी थे, छूट गई ना उनसे, सदियों से आदी थे, ऐलान हुआ नहीं पीनी, खत्म, वो बहा दिया उन्होंने, नालियों में शराबें बहा दी हैं। कितनी
कितनी टेंशन हुई होगी कुछ दिन उनको, बुत परस्ती उनके खून में शामिल हो चुकी थी। छोड़ दी ना ऐसी तौहीद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान इस बात से मायूस हो गया कि जजीरे अरब में उसकी इबादत हो, क़यामत तक बुत परस्ती जजीरे अरब में नहीं होगी। आज भी अरबों की तौहीद देखो, अरबों में कोई बड़े से बड़ा इंतकाल हो, इतनी सी कब्र होगी छोटी सी, और पता नहीं कहां होगी, पता ही नहीं होगा। हमारे यहाँ कोई छोटे सा आदमी भी दुनिया से जाता है, शोर इतना ज्यादा होता है और उसकी कब्रें इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ जैसी कब्रें, और फिर कब्रें भी कब्रिस्तान में नहीं होंगी। ये भी एक बहुत बड़ी बिदअत है भाई। जहां सब मुसलमान दफन होते हैं वहां बुजुर्ग को क्यों दफन नहीं कर रहे? हर बुजुर्ग के लिए एक अलग चारदीवारी होगी और अलग प्रोटोकॉल देके दफन किया जाएगा। ये कहां से बिदअत आई है? ये अजमियों की बिदअतें हैं। अरबों में ये चीजें नहीं है। शाह फहद की कब्र पता है किसको कहा है? बोलो ना भाई, सऊदी अरब का बादशाह शाह फैसल की कब्र का पता है? कह रहे भाई दुनिया से चले गए तो आम मुसलमानों की कब्रिस्तान में बड़े बड़े उलमा, शेख बिन बाज का कोई मजार देखा किसी ने? सऊदी अरब के मुफ्ती आजम बहुत बड़े मुफ्ती आलिम थे, किसी को पता उनका मजार कहां है? कोई फूल देखा उनके मजार पे, उनकी कब्र पे? ये तौहीद है जो आज भी आपको कहां मिलेगी? बोलो, अरबों में। और हमारे यहाँ जिसका इंतकाल हो रहा है इतनी इतनी ऊंची ऊंची कब्रें, फिर उनके फूल डाल के और इतना ऊंचा कर दिया, फिर उन कब्रों पे जो कुछ हो रहा है बिदअतें, और फिर अलग प्रोटोकॉल देके अलग कब्र क्यों बना रहे हो भाई? हमारे हजरत फरमाया करते थे जो बुजुर्ग होगा ना, वाकई में बुजुर्ग, वो ये चाहेगा मुझे आम मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन किया जाए, क्योंकि अल्लाह की रहमत जो आम मुस्लिमीन पर होती है वही मुझ पर हो। वो अपने आप को कभी भी आम मुसलमानों से मुमताज और जुदा नहीं करना चाहते, तो उनकी तो ये ख्वाहिश होती है। बाद वाले फिर अपने चक्कर में उनको अलग दफन करते हैं, अपने चक्कर में। जितने बुजुर्गान दीन की कब्रें अलग अलग जगह पर, इनकी अपनी कोई वसीयत नहीं थी, बात के मुरीदीन गड़बड़ करते हैं उनके साथ। तो हमारे यहाँ अकीदों के मामले में हिसाब बहुत खराब है, बहुत खराब। तो हमारे नबी ने कैसी मेहनत की, वो कौम जो कब्र परस्त और बुत परस्त थी, कैसी तौहीद के 1400 साल गुजर गए। आप अरबों में जाके या देखो, आपको कब्रों में कोई कब्र एक बालिश से ज्यादा ऊंची नजर नहीं आएगी। हालांकि वहां जितने बड़े बड़े लोग दफन हैं, हम जैसे उनका तस्वुर भी नहीं कर सकते। इतने बड़े बड़े लोग दफन है वहां पे। जन्नतुल बकी में कितने बड़े बड़े लोग दफन है, जन्नतुल मुअल्ला में कितने बड़े बड़े लोग दफन है। तो इससे पता चलता है भाई, अगर चाहो तो सब कुछ हो सकता है, नहीं चाहो तो कुछ भी नहीं हो सकता। अल्लाह ताला हम सबको समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। वेंटिलेटर पर है, इनके लिए दुआ करें, दिल से दुआ, अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए। शहजाद के वालिद साहब की सेहत के लिए और उनके खात्मा बिल खैर के लिए दुआ करें, दिल से दुआ, अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए और ईमान पर मौत मुकद्दर फरमाए। ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड के जरिए रकम अदा करने पर दराज की तरफ से 101 10% या 20% डिस्काउंट मिलता है, वो सही है या नहीं है? हाँ ठीक है। क्या फरमाते हैं मुफ्तियान इकराम मसला मज़कूरा के बारे में कि एक मुसाफिर शख्स कहीं पर नमाज पढ़ने के लिए उतरा, जब वो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद पहुंचा तो आखिरी रकत में शरीक हुआ। वाज़ेह है कि इस जमात में अक्सर तादाद मुसाफिरीन की थी। अब इस शख्स को मालूम नहीं कि इमाम मुसाफिर है या मुकीम, तो अब इस हालत में वो 2 रकत पड़ेगा, ये 4 रकत। ये बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि पता ही नहीं होता इमाम मुसाफिर है या मुकीम है, और वो आखिरी रकत में होता है। तो इसी वजह से इमाम पर ये लाजिम है कि वो सलाम फेरने के बाद बताए कि मैं मुसाफिर हूँ। अतिम्मु सलातकुम फइन्ना कौमुन सफरुन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुसाफिर होते थे तो सलाम फेरने के बाद ये ऐलान करते कि हम मुसाफिर हैं, जो मुकीम है वो अपनी नमाज मुकम्मल कर ले। तो इमाम पर भी ये लाजिम है कि वो ऐसी जगह नमाज पढ़ा रहा है कि लोगों को कन्फ्यूजन हो सकती है, तो वो सलाम फेरने के बाद उर्दू में बता दे कि मैं मुसाफिर हूँ, आप अपनी नमाज मुकम्मल करें, उससे पीछे पता चल जाएगा। नहीं पता चलता तो फिर इमाम ने अगर ऐलान नहीं किया तो बज़ाहिर यही है कि वो मुकीम है, तो आप 4 रकत मुकम्मल कर लें, फिर पूछ लें, पूछने के बाद अगर मुकीम है तो हो गई नमाज, नहीं है तो फिर 2 रकत पढ़ें दोबारा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सर धोती पहनी है, फिर उलमाए किराम अक्सर धोती क्यों नहीं पहनते? तहबंद पहना है, इज़ार पहना है, क्योंकि उस जमाने में रिवाज ही यही था। तो शलवार की भी मुझे याद पड़ता है, किसी रिवायत में तस्करा मिलता है, हर कौम का अपना कल्चर होता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गधे की सवारी फरमाई है, घोड़े की सवारी फरमाई है, ठीक है ना, जौ की रोटी खाई है। उस जमाने में लोग जौ की रोटी ज्यादा खाया करते थे, खजूरें खाई हैं। तो अब ये नहीं कि लोग, आपका मिजाज खजूर का है या नहीं है, फिर भी आप खजूरें खा रहे हैं। खजूर हर आदमी को तो मुवाफिक नहीं आती। या गधे, आपको सवारी जो है ना, गाड़ी है और आप गधे पर सवारी करें। अब अंग्रेजों को अगर आप कहीं कुर्ता शलवार पहने तो सर्दी से ठिठर के वैसे ही मर जाएगा बेचारा लंदन में, और यहाँ इतनी सर्दी होती है। तो इसलिए इस्लाम ने किसी कौम का कोई मखसूस लिबास नहीं रखा। दीन फितरत है ना, तो फितरत के हिसाब से लोगों को आजादी दी है, जो जिस जमाने के हिसाब से लिबास पहनना चाहे। हाँ, उसमें यह है कि किसी कौम का शिआर ना हो, और औरत का लिबास प्रॉपर हो, मर्द का लिबास औरतों जैसा ना हो, औरतों का मर्दों जैसा ना हो। मर्द के लिए इजार या शलवार टखनों से नीचे ना हो, ऊपर ऊपर हो। ये चंद पाबंदियां लगाई हैं, उसके अलावा इस्लाम ने आजाद रखा है। लिबरल्स कहते हैं कि हमारे मुआशरे में औरत में कोई बुराई हो तो ज्यादा बुरी समझी जाती है। मसलन अगर कोई मर्द सिगरेट पीता है तो बुरी आदत कहते हैं, लेकिन अगर कोई औरत
जाती है तो बुरी औरत समझी जाती। देखो लिबरल लोगों को तो खवातीन के हुकूक के नाम पे चूरन बेचने का बहुत शौक, इनके यहाँ जितने खवातीन के हुकूक पामाल होते हैं ना, इतने मजहबी लोगों के यहाँ नहीं होते, ये तो दिमाग में रखो आप। सबसे पहली बात ये है कि इनकी शादियां इतनी लेट होती हैं, तो अब ये जब 40 साल में शादी करेगा तो ये इससे औरत का हक पामाल हो रहा है, नहीं हो रहा। जिस औरत से शादी होनी थी वो बगैर, वो शौहरलेस जिंदगी गुजारती है 40 साल तक, वो बॉयफ्रेंड के साथ गुजारा करती है। तो मजहबी लोग जल्दी निकाह करते हैं, जब निकाह करते हैं तो उस लड़की को जल्दी घर बसा देते हैं, उस बॉयफ्रेंड की नहुसत से निकाल के उसको शौहर वाली नेमत अता करते हैं, उसकी औलाद होती है, खानदान बसता है। तो आज जितने भी नारे लग रहे हैं ना औरत के हुकूक के नाम पे, ये लेबल बहुत अच्छे हैं, इनके पीछे औरत का इस्तेहसाल हो रहा है। तो ये जो इन्होंने सवाल किया है, कहाँ चला गया सवाल ही गायब हो गया। तुम सवाल लेके बैठ गए यार। हाँ कि खवातीन सिगरेट पीती हैं तो ज्यादा बुरा समझा जाता है, मर्द पीता है। देखो पहली बात तो ये जो लिबरल लोगों का एक प्रोपेगेंडा है या मजहब मुखालिफ लोगों का जो एक प्रोपेगेंडा है कि मर्द और औरत दोनों को एक नजर से देखते हैं, ये नजर ही गलत है। दोनों में जब अल्लाह ने फर्क रखा है तो उस फर्क को खत्म कर देना ये पागलपना है, हमाकत है। दोनों की जो अल्लाह ताला ने जो सोच बनाई है, बॉडी बनाई है, दोनों का जो मिजाज बनाया है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो लिहाजा दोनों के अहकाम भी एक दूसरे से जुदा है, अलग है। एक साहब मुझे कहने लगे जब शौहर मर जाता है तो बीवी इद्दत गुजारती है इस्लाम में, बीवी मर जाए तो शौहर पे इद्दत क्यों नहीं है? तो ये तो इस्लाम ने बड़ा फर्क कर दिया, उसके लिए हकाम अलग, इसके लिए अलग। मैंने कहा यार ये मैटरनिटी होम खवातीन के लिए होते हैं, मर्दों के लिए क्यों नहीं होते? ये गवर्नमेंट ने बड़ा फर्क किया हुआ है ना कि मर्दों के लिए अस्पताल अलग टाइप के, खवातीन के लिए। बोलो भाई वो मैटरनिटी होम औरतों के लिए बन रहे हैं। वो एक सियासी लीडर तकरीर कर रहे थे ना कि आप मुझे वोट दें, मैं स्कूल बनाऊंगा, लड़कों के अलग लड़कियों का अलग। अब जोश में सियासी लोग तो अक्सर आपको पता है कि फेंक रहे होते हैं, उनको पता तो होता नहीं है कि आगे करना भी है कि नहीं करना। तो उन्होंने कहा अभी तो वोट लेने, फेंकते रहो, मैं ये करूंगा, गर्ल्स के कॉलेज अलग बनाऊंगा, बॉयज का अलग। तो किसी ने कहा कि सर हमारे यहाँ मैटरनिटी होम नहीं है। उन्होंने कहा आप वोट तो दें मुझे, 2 बनाऊंगा, लड़कियों के लिए अलग, मर्दों के लिए अलग। तो जो इसके कायल है ना बराबरी के, उनसे कहो कि ये क्या मसला है कि औरत बच्चे को फीड क्यों कराती है, आदमी क्यों नहीं कराता? औरत बच्चा क्यों जनती है, आदमी क्यों नहीं जनता? तो इसलिए औरत पे इद्दत है, मर्द पे इद्दत नहीं है। नसब खराब होने का खतरा औरत से होता है, मर्द से थोड़ी होता है। तो इसलिए अल्लाह ने दोनों के हकाम में क्या रखा है, फर्क रखा है। अब कुछ अखलाकी बुराइयां ऐसी हैं जो मर्दों में हो तो ज्यादा बुरी समझी जाती हैं, औरत में हो तो कम बुरी समझी जाती हैं। और कुछ अखलाकी बुराइयां ऐसी हैं जो औरत में हो तो ज्यादा बुरी समझी जाती है, मर्द में हो तो कम बुरी समझी जाती है। चीखना चिल्लाना ये मर्दों पे भी बुरा है, औरतों पे भी, लेकिन औरत पे ये ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसकी तबीयत में अल्लाह ने मर्द से ज्यादा हया रखी है। वो बेहयाई का काम करेगी ना तो अपनी नेचर से ज्यादा बगावत कर रही है। वो मर्द अगर बेहयाई करता है तो वो अपनी नेचर से ज्यादा बगावत नहीं कर रहा, उसकी तबीयत में इतनी हया नहीं है। औरत तो नाम ही हया का है। बुजदिली अखलाकी बुराई है ना, बुजदिल होना। मर्द अगर बुजदिल हो तो भी बुरा, औरत बुजदिल हो बोलो तो भी बुरी है, लेकिन मर्द पे बुजदिली ज्यादा बुरी लगती है। अब अगर कोई मर्द बुजदिल छिपकली से डरता है, औरत भी छिपकली से डरती है, हम कहेंगे यार छिपकली क्या बिगाड़ेगी आपका, क्यों डर रहे हो? लेकिन मर्द अगर डरेगा तो ये ज्यादा बुरा समझा जाएगा, यार तुम आदमी हो के छिपकली से डरते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। और औरत अगर डर रही है तो थोड़ा बहुत समझा देगा, भाई बेगम मैं तुमसे डरता हूँ, तुम्हें अल्लाह ने ऐसी सलाहियतें दी और तुम छिपकली से डर रही है। किसी ने कहा दुनिया गोल है, तो बड़ा अच्छा किसी ने एक मैसेज भेजा था कि पता नहीं पूरी कहानी लिख के भेजी कि फला उससे डरता है, वो उससे डरता है, वो उससे डरता है, फिर आप सब अपने बॉस से डरते हैं, फिर बॉस अपनी बीवी से डरता है, और बीवी चूहे से डरती है, और चूहा आपसे डरता है। तो इससे पता चलता है दुनिया क्या है गोल है, सब एक दूसरे से डर रहे हैं। तो बुजदिली ये बुरी चीज है, ये मर्द पे ज्यादा बुरी, औरत पे कम दर्जे की बुरी है, कम दर्जे की बुरी, उसको इतना ताना नहीं दिया जाए। चीखना चिल्लाना बुरी आदत है, मर्द पे ज्यादा बुरा, लेकिन औरत पे और ज्यादा बुरा लगता है। तो इसी तरह याद रखो ये जो बेहयाई के काम है ना, बेहयाई वाले काम, बदकारी है, जिना है, ये दोनों के लिए बुरा है। इसलिए सजा अल्लाह ने सेम रखी है। मर्द अगर जिना करता है तो भी 100 कोड़े लगते हैं, औरत जिना करती है तो भी 100 कोड़े। मर्द शादीशुदा जिना करेगा तो रजम है, औरत को भी रजम है। लेकिन जहां जिना की सजा की बात आई है ना, तो अल्लाह ने औरत का जिक्र पहले किया कि इसको सजा दो, मर्द का दूसरे नंबर पे किया है। कुरान में हमेशा मर्द और औरत का जहां भी तस्करा आएगा, मर्द पहले होगा, औरत का तस्करा अल्लाह उसके बाद करते हैं। लेकिन चंद मकामात पे अल्लाह ने औरत का तस्करा पहले किया, मर्द का बाद में। जैसे जिना की जहां बात आई है, वज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, जिना करने वाली औरत और मर्द दोनों को कोड़े मारो, तो पहले जिक्र इसलिए किया है कि औरत के लिए जिना करना ज्यादा बुरा है, क्योंकि औरत में हया भी होती है जो उसको बुराई जिना से रोकती है। नंबर 2, उसमें ये शहवत ज्यादा नहीं होती, ये मर्द में ज्यादा होती है। इसलिए अगर वो जिना करेगी ना तो वो अपनी नेचर की बगावत उसने बहुत ज्यादा की है। उसने अपनी हया का भी ख्याल नहीं किया, हया भी उसको रोक रही थी, और उसमें वो डिजायर्स भी नहीं होती इतनी शिद्दत के साथ जितनी मर्द में होती है। तो इस दर्जे की डिजायर्स भी नहीं थी जो मर्द में होती हैं, और हया भी थी। इसके बावजूद इसने ज़िना किया तो अल्लाह ने क्या फरमाया, इसको पहले कोड़े लगाओ। अब लोग इस पे भी एतराज करते हैं कि ये मुफ्ती साहब ग्राउंड रियलिटी के खिलाफ बात कर रहे हैं। हम ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक बात कर रहे हैं। आप देखो कोई औरत किसी को ज़िना की दावत दे और मर्द भाग जाए, ये मर्द का बड़ा कमाल समझा जाता है कि यार बड़ा नेक आदमी, औरत ने दावत दी और कोई रुकावट नहीं थी मगर इसने अपने आप को बचाया। लेकिन मर्द अगर औरत
عورت کو دعوت دے اور وہ بھاگ جائے تو یہ عورت کا کوئی بڑا کمال نہیں سمجھا جاتا. زیادہ تر عورتیں اپنے آپ کو اس برائی سے بچاتی ہیں, ان میں وہ ڈیزائرز نہیں ہوتی جو مردوں میں رکھی ہیں. یوسف علیہ السلام کو کنڈی لگا کے دروازہ بند کر کے عزیز مصر کی بیوی نے برائی کی دعوت دی, حضرت یوسف بچ گئے. اللہ نے کیسا تذکرہ کیا یوسف علیہ السلام کا, کیسا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمیوں کو اللہ قیامت میں اپنے عرش میں جگہ دے گا, ان میں ایک وہ شخص بھی ہے, نوجوان بھی, جسے خوبصورت عورت زنا کی دعوت دے اور وہ بچ جائے. تو یہ فضیلت عورت کے لیے کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس میں یہ ڈیزائرز نہیں ہوتی. تو دونوں کو ایک ہی لاٹھی سے جو بھی پاگل ہانکے گا وہ اپنا علاج کرائے. تو اسی طرح یہ جو نشے والی چیزیں ہیں ان کا بھی تعلق کس سے ہے؟ مرد لونڈے لپاڑوں میں بیٹھتے ہیں, باہر نشئی لوگوں میں بیٹھتے ہیں, خواتین عموماً گھر میں رہتی ہیں, ان کو بگڑنے کا موقع اتنا نہیں ملتا جتنا موقع کن کو ملتا ہے؟ آدمیوں کو. تو اس لیے اگر آدمی سگریٹ پی رہا ہے یہ بھی برا ہے, عورت کا سگریٹ پینا اور زیادہ برا ہے. کہ آپ میں تو حیا ہے, آپ کو تو جو ہے نا حیا بھی تو ان چیزوں سے روکتی ہے نا. بھائی سگریٹ آوارہ گرد قسم کے لوگوں کا کام ہے نا, لونڈے لپاڑے جو گھوم رہے ہوتے ہیں باہر, اس ٹائپ کے لوگ. تو عورت کی حیا اس کو ان چیزوں سے, سٹا لگانے سے, چرس پینے سے روکتی ہے. تبھی عورتوں میں ان برائیوں کا ریشو مردوں سے کم ہوتا ہے. یہ اس لیے تھوڑی ہوتا ہے کہ انہوں نے علماء کے بیانات سنے ہوئے ہیں, بیان تو مرد زیادہ سن رہے ہوتے ہیں پھر بھی زیادہ پی رہے ہیں. یہ نیچر روک رہی ہوتی ہے, یہ نیچر ان کو ان برائیوں سے روک رہی ہوتی. ہمارے ایک دوست امریکہ گئے, انہوں نے مجھے بتایا کہ وہاں ایک خاتون نے گوری آئی, ان کے پاس سوال پوچھا کہ آپ کا جو اسلام ہے وہ مرد کو جو 4 کی اجازت دیتا ہے, عورت کو اجازت نہیں دیتا. تو عورت کی بھی تو ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے نا کہ وہ ایک سے زیادہ مردوں کے پاس جانا چاہتی ہے, اس کی بھی تو ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے. تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا اسلام نے جن 4 عورتوں کو ایک مرد پر قناعت کا حکم دیا ہے نا, ان سے عورتیں مراد ہیں جو عورتوں کی فطرت پر ہوں, جو کیا ہوں, جو واقعی عورت ہوں. آپ جس کلچر کی بات کر رہی ہو نا, اس خاتون سے کہا یہاں بہت سی عورتیں رہی نہیں ہیں, وہ آدمی بن گئی ہیں. تو عورت جب اپنی فطرت پہ ہوگی تو وہ کبھی اس کا تقاضا نہیں کرے گی کہ اس کو بھی 4 مردوں سے نکاح کی اجازت دی جائے. تو وہ کبھی بھی تقاضا نہیں کرے گی اس کا, اس کی نیچر اس کو قبول نہیں کرے گی. ہاں اگر عورت کو اس کی فطرت سے ہی ہٹا لیا جائے تو بے حیا بن جائے, پھر تو وہ ظاہر ہے اس کے پھر احکام وہ تھوڑی ہوتے ہیں, پھر تو وہ اس کی نیچر ہی چینج ہو گئی ہے نا. کسی کو چرس کی عادت پڑ گئی ہو, ہیروئن کی عادت پڑ گئی ہو, تو اب اس سے ہیروئن اور چرس کو تھوڑی حلال قرار دیا جائے گا کہ اس کا چونکہ چرس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا لہذا اس پہ چرس پینا واجب ہے. او بھائی گزارا نہیں ہوتا, یہ تیری ہیڈیک ہے, تو نے اپنے آپ کو برباد کیا, اب تو چھوڑے گا, چرس حلال نہیں ہو جائے گی. تو ایسے ہی یاد رکھو, بہت سی یہ آج کل چونکہ مرد ادھورے لباس پہنتے ہیں, لوگ کہتے ہیں واہ وہ اس سے تو کوئی نہیں پوچھتا, عورت ادھورا لباس پہنے تو پورا میڈیا حرکت میں آ جاتا ہے اور لوگ ملامت کرتے ہیں. تو بھائی مرد کے لیے پردے کے حکام الگ ہیں, عورت کے لیے پردے کے حکام الگ ہیں. مرد کے لباس کم پہننے سے بے حیائی نہیں پھیلتی اتنی جتنی عورت کے بے لباسی سے پھیلتی ہے. لیکن کمال کی بات یہ کہ مرد پھر بھی پراپر ڈریس پہن رہا ہے پورے یہاں سے لے کے, یعنی یورپ میں تو جتنا مرد ڈھک سکتا ہے نا, میرا خیال ہے بس آنکھیں اور چہرہ رہ گیا ہے تاکہ پہچان میں آ جائے کہ یہ وسیم بھائی ہیں, ستار بھائی ہیں, غفار بھائی. آج پورے بیان میں وسیم بھائی نہیں آئے تھے, چلو وہ بھی آ گئے, وہ ناراض ہو رہے ہوں گے یار آج مفتی صاحب ہمیں بھول گئے. تو فطرت کے بالکل کیا چل رہی ہے, نیچر سے لڑوا رہے ہیں ہم کو یہ لبرلز لوگ. اسی میں یہ جو میں نے ماتحت والی بات کی تھی, عورت کی فطرت ہے وہ مرد کے ماتحت رہنا چاہتی ہے, وہ نہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا چاہتی. لیکن میڈیا نے اس کو کیا بنا دیا ہے, مرد کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر. اب وہ مقابلے میں جب مرد کے آ کے کھڑی ہو گئی ہے تو مرد اس کو تسلیم نہیں کر رہا اس مقابلے کو. نتیجہ کیا نکل رہا ہے, گھروں میں لڑائی اور پھر علیحدہ. تو میڈیا کو چاہیے خواتین کو یہ سمجھائے اپنے شوہروں کی ماتحت بنو. جیسے نبی نے فرمایا عورت کی جنت اس کا شوہر ہے, وہ عورت جنت میں داخل نہیں ہو سکتی جس کا شوہر اس سے ناراض ہے, وہ نہیں داخل ہو سکتی. اس کو خوش کرو, اس کی اطاعت کرو, اس کی فرما برداری کرو, گھر بساؤ. لیکن الٹی کہانیاں پڑھائی جا رہی ہیں, ساسوں کی خدمت لازم نہیں ہے, سسر کی خدمت لازم نہیں ہے. تو کمال ہے یار, جب کچھ بھی لازم نہیں ہے تو گھر میں کیا پیڑے کھانے کے لیے آئیے. وہ جب ایک گھر میں رہتے ہیں تو سب بڑوں کی خدمت کرتے ہیں. بیٹے پر بھی لازم ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کرے جو بھی گھر میں بڑے ہیں, تو عورت پر بھی لازم ہے گھر کے بڑوں کی خدمت کرے. چھوٹوں پر اس کو یہ لیبل نہ لگائیں کہ ساس سسر کی خدمت, اس کو یہ کہیں کہ چھوٹوں پر لازم ہے کہ وہ بڑوں کی خدمت کرے. چاہے وہ شاگرد ہو, شاگرد پر لازم ہے اس کا استاذ کی خدمت کرے. وہ پوتوں پر لازم ہے دادا کی خدمت کرے, نواسوں پر لازم ہے نانا کی خدمت کریں. تو صرف ایک بہو پر لازم نہیں ہے ساس سسر کی خدمت, ہر چھوٹے پر لازم ہے کہ وہ اپنے بڑے کا خیال رکھے. اس لیے میں اس کو یہ لیبل نہیں لگاتا کہ بہو پر ساس سسر کی خدمت لازم, اس لفظ سے چڑھتے ہیں لوگ. چھوٹے پر لازم ہے کہ جب وہ جوائنٹ فیملی میں گھر میں رہتے ہیں تو اپنے بڑوں کا خیال رکھیں. ساس سسر نہ بھی ہو, آپ کے ماموں بوڑھے ہو گئے, وہ آپ کے ساتھ گھر میں آ کے رہتے ہیں, آپ پر ان کی خدمت بھی لازم ہے. نہیں یار میرے خیال ہے بات سمجھ. اور اگر کوئی عورت نہیں کرے گی خدمت تو غیرت مند آدمی برداشت نہیں کرے گا اس کو کہ یار میرا ماموں ہے, میرا چاچا ہے, بوڑھا ہے, وہ گھر میں پڑا ہوا ہے, تم اس کو پانی نہیں پلاتی, تم وہ چائے کا
کا کہہ رہا ہے تو اس کو چائے بنا کے نہیں پلا سکتی. یہ تھوڑی ہوتا ہے بھائی, پھر ایسے نہیں گھر چلتے. بالکل آزاد, ہر آدمی کیا کہہ رہا ہے, میں کیا ہوں, آزاد. اچھا, بعض خواتین کو بھی شکایت ہوتی ہے کہ نبی بھی گھر میں کام میں ہاتھ بٹاتے تھے. تو ہاتھ بٹانا سنت عمل ہے, بتانا چاہیے. ہم بھی کوشش کرتے ہیں ٹوٹے پھوٹے طریقے سے ہاتھ بٹانے کی, آپ بھی بٹایا کریں, لیکن کتنا. اب جو لبرل لوگ ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہ گھر کے کام عورت کی ذمہ داری نہیں ہے. وہ بالکل گوروں والا کلچر لا رہے ہیں کہ برابر برابر کام کریں گے گھر کے. آدھا آدمی کرے گا, آدھا کون کرے گا, بولو, مرد. تو اس پہ بھی آواز اب اٹھ رہی ہے. تو میں کہتا ہوں پھر گھر کے باہر کے کام بھی آدھے آدھے ہونے چاہیے. کیا خیال ہے؟ کمانا بھی تو گھر کے باہر کا کام ہے نا. دیکھو کھاتے تو دونوں بیٹھ کر ہیں, کماتا کون ہے؟ شریف لوگوں میں ابھی تک یہ کلچر چل رہا ہے کہ آدمی کماتا ہے. تو پھر آدھا کمانا بھی کس کی ذمہ داری ہو؟ عورت کی ذمہ داری. آدھی کس کی ذمہ داری ہو؟ مرد. تو پھر یہ بھی ہونا چاہیے, تو جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے تو نقصان ہوگا, عورت کا استحصال ہوگا. لیکن آپ چاہیے کرتے رہو, مگر معاشرے میں ہو یہی رہا ہے, اور معاشرہ اس طرف چل پڑا ہے کیونکہ ہمارے دیندار لوگوں نے بھی اب کمپرومائز کر لیے, ہتھیار ڈال دیے. اب گھریلو عورت چاہیے ہی نہیں, پڑھی لکھی چاہیے. اور پڑھی لکھی کا مطلب ایجوکیشن نہیں ہے, جاب کرے وہ جاب. تو جاب کی وجہ سے اب گھر کا سسٹم تباہ ہو برباد ہو رہا ہے. وہ بھی کمائے, آپ بھی کماؤ. شام کو میں کہتا ہوں گھر کی ضرورت نہیں ہے, ہوٹل لے لو کرائے پر, اسی میں ملاقات کر لیا کرو. گھر تو بھائی گھر میں تو گھر والی ہوتی ہے. دیکھو عورت کا نام ہی گھر والی ہے. عورت کا نام کیا ہے عربی میں؟ اہل بیت. گھر, اہل بیت کا بیت گھر کو کہتے ہیں, اہل کمانا والا, اہل بیت گھر والی. تو جو عورت کا لقب ہی گھر والی ہے اسی کو گھر سے باہر نکال دیا, تو پھر گھر میں کون رہے گا؟ تو جی پاگلوں والی حرکتیں یار کھوپڑی میں آتی نہیں ہے. پتہ نہیں یہ سائنس کے نام پہ سارے کام ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ایجوکیشن کے نام پہ یہ دھاندلیاں ہو رہی ہیں. فطرت, ایک بات یاد رکھو, کتنی سائنس ترقی کر لے نیچر کبھی تبدیل نہیں ہوگی. آپ کہو کہ 10,000 سال پہلے چونکہ لوگ دانتوں سے روٹی چبا کے کھایا کرتے تھے, اب تو دنیا ایڈوانس ہو گئی ہے, اب میں برگر کھاؤں گا اور چبے چبائے برگر گرینڈ کر کے کھاؤں گا کیونکہ اب سائنس بہت آگے نکل گئی, اب چبانے کی ٹینشن نہیں لوں گا. تو یہ پاگل پنا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ او بھائی سائنس جتنی بھی ترقی کرے, آپ کی 6 فٹ کی 5 فٹ کی جو باڈی ہے وہ چینج تھوڑی ہوئی ہے. تو نہ مرد تبدیل ہوا, نہ عورت تبدیل ہوئی, نہ بچے پیدا ہونے کا پروسیس چینج ہوا, نہ آپس کا جو ریلیشن ہے اس میں کوئی وہ چینجنگ ہوئی ہے, اس کے اصول بھی وہی ہیں. تو کتنی بھی ترقی کر جائے سائنس, جو 10,000 سال پہلے کامیابی کے اصول تھے آج بھی وہی اور کل بھی وہی اصول رہیں گے. اس کو چینج کرنے کی کوشش ترقی کے نام پہ مت کرو. سمجھ نہیں آ رہی تو پھر جیسے چل رہے ہو چلتے رہو, اپنا خود ہی بیڑا غرق کرو گے. بہت شوق ہے یار, یہ ایسی بہو چاہیے, ڈاکٹر چاہیے, انجینئر چاہیے. بھائی تو نے کلینک کھلوانی ہے, کیا کرنا ہے اللہ کے بندے. ٹھیک ہے ایجوکیشن کی ایک ویلیو ہوتی ہے, لیکن آپ کو کیوں چاہیے؟ کیا مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ ٹیکا لگوانا ہے تم نے, پیراڈول کھانی ہے. بڑے بڑے ڈاکٹر پڑے ہوئے یار, پرپز ہی پتہ نہیں ہوتا کمبخت کو کسی کو کہ میں نے کرنا کیا ہے, اس کی وجہ سے پاگل ہوئے گھوم رہے ہیں. اور پھر ایک عورت سے جب آپ سب چیزیں چاہو گے تو پھر کچھ بھی نہیں ملے گا. ایک کام اس کے ذمہ لگاؤ, بھائی تمہارا یہ گھر ہے, بس یہ اس کو جنت بنا دو, اور ساری ذمہ داری کس کی ہے؟ میری ہے. تو فائنینس کی ذمہ داری, معاشی ذمہ داری ساری میری ہے, اور گھر میں تمیز سے بیٹھ کے تم بس کھاؤ, ٹھیک ہے نا. پیزا چاہیے پیزا لے آؤں گا, برگر چاہیے انڈے والا چاہیے, زنگر برگر. آج کل اتنے پیسے ہوتے ہیں, جو غریب آدمی ہے وہ پھر ان کی بیویوں کی ریکوائرمنٹ بھی اسی حساب سے ہوتی ہے. لیکن نارملی لوگ تو یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں. او بھائی تم نے گھر کو کیا بنانا ہے؟ جنت. کل ایک خاتون نے مجھے میسج بھیجا, کسی کو پتہ نہیں ہے کس کی بات چل رہی ہے, غیبت میں نہیں آتا, کہ میری بھابھی یہ فل ٹینشن بنی ہوئی ہے میرے لیے, اور بھابھی الگ گھر کا مطالبہ کر رہی ہے, اور بھابھی یہ کر رہی ہے, اور بھابھی یوں کر رہی ہے, اور بھابھی یہ کر رہی ہے, اور بھابھی وہ کر رہی ہے. تو میں نے کہا آپ گھر میں ہو کیوں؟ کہہ رہی میں ڈاکٹر بن رہی ہوں, میں بھی شادی نہیں کر سکتی. تو میں نے کہا یہ آپ کی ٹینشن ہے, آپ کی بھابھی کی ٹینشن نہیں ہے. جب بھابھی گھر میں آئے گی نندوں کے ساتھ اس کا گزارا نہیں ہوگا. آپ شادی کر کے پتلی گلی سے نکلو یہاں سے, اس کے گھر چھوڑو. بھابھی اور اس کے آپ کے بھائی کا ہیڈیک ہے, وہ الگ رہنا ہے, ساتھ رہنا ہے, ساتھ سے لڑنا ہے کہ نہیں لڑنا, کیا پکانا ہے, یہ آپ کا ہیڈیک نہیں ہے. نیچرل لائف تھوڑی ہے. بلوغت کے بعد آپ کے باپ کا گھر آپ کا نہیں ہے, آپ کا گھر اپنے میاں کا ہے. وہاں جاؤ اور وہاں سے نندوں کو نکالو. حقیقت ہے, عورت کا گھر تو اس کے میاں کا ہوتا ہے نا. ابے اماں ہوا کس کے ساتھ رہتی تھی؟ آدم علیہ السلام کے ساتھ رہتی تھی نا. رخصتی آدمی کی تھوڑی ہوتی ہے, عورتوں کی ہوتی ہے رخصتی. تو عورت کی رخصتی ہوتی ہے کہ بھئی یہ اب تمہارا گھر کون سا ہے؟ تمہارے میاں کا, یہاں تمہاری اولاد ہوگی, یہاں تمہارا گھر بسے گا, قیامت تک اب یہی رہو گی, جنازہ یہاں سے اٹھے گا تمہارا. پہلے تو اس کا بھی خیال کرتے تھے کہ عورت کا انتقال باپ کے گھر میں ہو جائے نا, تو پرانے لوگ اس کا خیال کر جنازہ شوہر کے گھر لے کے جاتے تھے, وہاں سے اٹھے. اس کو فضیلت سمجھتے تھے کہ بھئی وفادار عورت ہے, جنازہ کہاں سے اٹھ رہا ہے؟ اپنے میاں کے گھر سے. اتنا خیال کرتے تھے. اب تو کلچر نے بیڑا ہی غرق کر دیا, جہاں سے مرضی جنازہ اٹھے کوئی مسئلہ نہیں. عدالت میں خلا کا کیس چل رہا تھا, جنازہ اٹھ رہا ہے, تو یہ ہو رہا ہے. تو میں نے اس خاتون کو مشورہ دیا, میں نے کہا آپ اس ٹینشن میں, بھابھی اور بھائی کی جو لڑائی کی ٹینشن آپ کے ذمہ نہیں ہے, کیونکہ وہ ٹینشن, پھر وہ بھابھیوں کی غیبتیں, بھابھی یہ کر رہی ہے, بھابھی یہ کر رہی ہے. چھوڑ دے بھابھی کو اپنے حال پہ, بھائی کے ساتھ. آدمی کو پتا ہوتا ہے بیگم کو کس طرح لے کے چلنا ہے, کیا اس کی برائیاں کیا اچھائیاں, وہ اس حساب سے چل رہا ہوتا ہے. اسے پتا ہوتا ہے میری بیوی میں یہ برائی ہے, لیکن کوئی بات نہیں یار, میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا, یہ برائی کے باوجود میں اس کو رکھوں گا, برداشت کروں گا. وہ صحیح نہیں کر سکتا, لیکن عورتیں اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتی, میری بھابھی میں یہ برائی کیوں ہے, سیدھی کیوں نہیں ہو رہی برائی, تو
पुलिस नहीं कर सकती, आप कहां से सीधा कर सकती है? तो छोड़ दो, आप अपने घर बसाओ यार, निकलो पतली गली से। नहीं जी, मैं जब तक मेडिकल कॉलेज मेरी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो जाती मैं शादी नहीं करूंगी। ये खवातीन के वो होते हैं। तो ठीक है, जब एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी अच्छी डॉक्टर तो बन जाओगी, लेकिन उसके साथ पहले आपको किसी साइकेट्रिक को दिखाना पड़ेगा। खोपड़ी सही काम करना उस वक्त तक छोड़ चुकी होगी। इतने घरेलू घर में झगड़े हो चुके होंगे ना, और जब एक दफा दिमाग की सेटिंग आउट होती है ना, फिर ऐसी खवातीन शादी होके ये सारी टेंशन पार्सल कर देती हैं ससुराल में। आई बात समझ में? क्योंकि अपना ही खोपड़ा सही नहीं होता। तो जब टेंशन के साथ रुखसती हुई है तो वो फिर देखो, फ्रेश दिमाग आदमी हर जगह खुश रहता है, हर नेगेटिव को भी पॉजिटिव ले जाता है। और जो पहले से ही जला भुना बैठा हो और पहले से ही डिप्रेशन में हो, वो दूसरों को भी डिप्रेशन में डालता है कि नहीं डालता? वो लतीफा सुनाता हूं ना, इमाम साहब बयान कर रहे थे कि 3 आदमी जहन्नम में जाएंगे, एक वो जो जिना करता है, एक वो जो सूद खाता है, तीसरा वो। अभी कह नहीं लगते थे कि आदमी उड़ जाता था। इमाम साहब एक बात मेरी सुन ले। इमाम साहब ने कहा बैठ जा, बात तो कंप्लीट होने दे, फिर शुरू करते। 3 आदमी जहन्नम में जाएंगे, एक वो जो जिना करता है, दूसरा वो जो नमाज छोड़ता है, तीसरा। फिर वो कहते इमाम साहब 1 मिनट की बात। इमाम साहब को गुस्सा आ गया। इमाम साहब ने कहा बैठ आराम से। फिर कहने लगे 3 आदमी जहन्नम में, एक वो जो जिना करता है, दूसरा वो जो नमाज छोड़ता है, तीसरा वो जो खड़े हुए ना, उसने कहा तीसरा ये जाएगा जहन्नम में। तीसरा कह रहे ये जाएगा। तो गलत कहा इमाम साहब ने, लेकिन जब आदमी डिप्रेशन में होता है तो फिर इस तरह की बातें करता है। तो ये फिर अपनी वो घर की ज्वाइंट फैमिली की टेंशन लेके, यही टेंशन कहां जाएगी? इसी टेंशन के साथ इनकी रुखसती होगी, वो भी पता नहीं हो कि ना हो, क्योंकि डॉक्टर बनने में टाइम लगेगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर वो उम्र भी निकल जाएगी। फिर एक नई टेंशन के मेरी भाभी की शादी हो गई मेरे भाई जैसे हीरे से, और मेरे लिए कोई रिश्ता आ ही नहीं रहा। फिर ये अजाब है। घर में नंदों का वजूद जो है ना बहुत बड़ी अल्लाह की रहमत है, क्योंकि नंदे भी बयान सुनती हैं। तो घर में बहुत बड़ी अल्लाह की रहमत है नंदों का वजूद। तो अबे भाई अपने घर का अपना घर बनाओ, जाके वहां शौहर से बोल दो कि मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही हूं, मैं अपनी एजुकेशन जारी रखूंगी। ये शर्त लगा लो ससुराल। और अच्छा इज्जतदार शौहर होगा तो बोलेगा अब ये बाकी तालीम मेरे खर्चे पे होगी। इंसान का बच्चा होगा तो क्या बोलेगा कि भाई मेरी बीवी डॉक्टर बन रही है तो मेरी इज्जत होगी मुआशरे में, भाई डॉक्टर साहब के हस्बैंड जा रहे हैं, ठीक है ना। इनको तो कुछ नहीं आता, लेकिन इनकी वाइफ क्या है, पढ़ी लिखी है, तो इसी बहाने इज्जत हो जाएगी थोड़ी सी। तो अब बोलो भाई कि ये बाकी खर्चा कौन उठाएगा? मैं उठाऊंगा। तो निकलो घर से यहाँ से, नहीं तो ये इन लड़ाइयों का कोई इलाज नहीं है। भाभी को नंद नहीं ठीक कर सकती, ये ज़हन में रखो, न ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। मुफ्ती साहब शिर्क पर बयान करें। बयान हुआ है मेरा शिर्क पर। मुफ्ती साहब क़यामत के दिन अल्लाह ताला हिसाब किस तरह लेंगे, इस पर तफसीली बयान करें। ओ भाई ये तो 6-6 घंटे के बयान आते हैं। मुफ्ती साहब घर सेल कर रहे हैं, रुकावटें बहुत आती है, दुआ की अपील है, दिल से दुआ, अल्लाह ताला आसानी फरमाए। घर बेचने में जो रुकावटें आती है, कोई बंदिश या जिन चुड़ैल भूत का असर नहीं होता। घर बेचना आसान काम नहीं है। कोई अंडे वाला बर्गर थोड़ी बेच रहे हैं कि 2 मिनट में बिक जाएगा। ये बहुत से लोगों के फोन आते हैं कि भाई घर बेच रहे हैं, 1 साल से कोशिश में लगे, मैं नहीं बिक रहा। भाई वो घर है, वो इतनी आसानी से नहीं बिकेगा। ऐसे ही बिक रहा होता, लोग अरबपति बन चुके होते, इधर घर खरीदा, उधर किसी को पहनाया, उधर दूसरा खरीदा, उधर किसी को पहनाया, ऐसे तो मजे